Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about a signaling pathway of a hormone that is abscisic acid, which is a plant hormone. So generally all the plant hormones, mainly the five, the auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid, they generally functions by two pathways. One are the two component system in the plants and the second pathway are ubiquitin degradation pathway. So in my video of auxin signaling pathway, I have given a brief introduction about the signaling pathways, that what is a two component signaling and what is a ubiquitin mediated signaling. So in that introduction, I have told that two hormones, the cytokinin and ethylene, they signals by two component system, whereas the three hormones, auxin, gibberellin and abscisic acid, they signals by ubiquitin 26 proteasome degradation. So in the series of the hormonal signaling, we will right now discuss about the signaling pathway of abscisic acid. Abscisic acid, which is mainly known as the stress hormone, which control the abiotic stress, like the osmotic concentration, like the salt concentration. Along with the regulation of the stress conditions, it is also called dormine because it regulates the dormancy in the plants in the several parts. If the seed is not germinating, that means that is dormant. So that dormancy is also caused by abscisic acid hormone. Or if any of the bud, especially the apical bud, if the apical bud is not elongating or the growth is retarded over the apical bud, so that is also caused by the abscisic acid. So there are mainly two functions. One are the causing dormancy, another are causing the and overcoming the stress conditions. So although they are growth retardant, but they are not harmful for the plants, they are beneficial for the plants because dormancy are also caused for the beneficial purposes. If the conditions are unfavorable, the seed would remain in a non-germinating state, that is the dormancy. So plants के लिए beneficial है, stress conditions को mainly abiotic stress conditions को regulate करते हैं. This is the main function of the abscisic acid. Now we will see that how they are undergoing the signaling pathway. In the introduction video of auxin hormone or the auxin signaling pathway, I have told about the two type of signaling in the plant. One are the two component system through which ethylene and cytokinin, the two hormones ethylene and cytokinin, undergoes the signaling by two component system, the plant two component system, and the auxin, gibberellin and abscisic acid, they undergo the signaling by the ubiquitin 26 proteasome degradation. So I have conveyed about the auxin signaling pathway as well as the other hormones. Today we will discuss about the ABA signaling pathway. So I have two conditions. One is the ABA absent and another is the ABA present. So जब भी ABA absent होगा, तब कौन कौन से रिसेप्टर हैं या कौन से प्रोटीन है जो एक्टिव रहेंगे या इनएक्टिव रहेंगे, दैट वी विल सी. एंड इन प्रेजेंस ऑफ द एबीए व्हाट आर सम चेंजेस दैट विल एक्टिवेट द रिस्पांस फैक्टर. तो इंट्रोडक्शन पहले आप ऑक्सिन सिग्नलिंग में देखें कि क्या रिसेप्टर है, क्या लिगेंड होता है, वेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिग्नलिंग बेसिक्स. सो राइट नाउ वी विल डिस्कस द एबीए. सो एबीए का जो रिसेप्टर होता है दैट इज PIR1. पायराबैक्टीरियन रेजिस्टेंस 1 एक फैमिली होती है या पायराबैक्टीरियन रेजिस्टेंस एक फैमिली है जिसके जो है रिसेप्टर एबीए के रिसेप्टर्स होते हैं. तो PIR1 है, PIR2 है. सिमिलरली PYL द पायराबैक्टीरियन लाइक रिसेप्टर, ये भी एक रिसेप्टर होते हैं एब्सिसिक एसिड के. एंड देयर आर वन मोर रिसेप्टर दैट इज RCAR द रेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ द एबीए रिसेप्टर्स. तो ये कुछ रिसेप्टर्स के नाम है. इनकी एक कॉमन जो फैमिली होती है उसे पायराबैक्टीरियन रेजिस्टेंस फैमिली कहते हैं. तो यहां पर रिसेप्टर शो किया गया है. दिस वन इज द रिसेप्टर. इफ द लिगेंड, इट मींस ABA इज नॉट प्रेजेंट, तो ABA नहीं होने पर रिसेप्टर इनएक्टिव है. रिसेप्टर के साथ एक और प्रोटीन एसोसिएटेड है जिसे हम PP2Cs कहते हैं. यहाँ पे नाम भी लिखा गया, मैंने साइड में एब्रिविएशन भी लिखे हैं. PP2Cs जो है दैट इज टाइप 2 प्रोटीन फॉस्फेटेजेस. तो ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले प्रोटीन है जो खुद फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिवेटेड रहते हैं. तो यहां पर ये एक्टिवेटेड स्टेट में है PP2Cs जो है, और इनका काम है ये इनहिबिट करते हैं SNRK2 एक अनदर प्रोटीन को. तो सिग्नलिंग पाथवे में अगर आप नए हैं तो आप पहले ऑक्सिन का पाथवे पढ़ें, वहां पर मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि यूबिक्विटिन मीडिएटेड सिग्नलिंग क्या है और टू कंपोनेंट सिग्नलिंग क्या है. अदर देन दैट आई एम आल्सो गोइंग टू गिव सम लेक्चर्स ऑन द सेल सिग्नलिंग ऑन आफ्टर 1 or 2 days, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है. फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, देन बेटर यू विल सी दिस टॉपिक. सो यहाँ पर जो रिसेप्टर है PYR दैट इज पायराबैक्टीरियन रेजिस्टेंस 1 फैमिली के जो रिसेप्टर हैं. PYL भी हो सकता है, पायराबैक्टीरियन लाइक रिसेप्टर, और जो है RCR रेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ एबी रिसेप्टर, कोई भी रिसेप्टर हो सकते हैं. जब तक लिगेंड यानी कि एबी नहीं है तो रिसेप्टर इनएक्टिव है, चाहे कोई भी रिसेप्टर हो. PP2C जो है ये को रिसेप्टर भी है या एक बाइंडिंग प्रोटीन है जो रिसेप्टर के साथ बाइंडेड है. जब तक ये रिसेप्टर के साथ बाइंडेड है ये इनएक्टिव है,
ये रिसेप्टर अभी जब तक इनएक्टिव है, सॉरी PP2Cs एक्टिव है, जब तक रिसेप्टर इनएक्टिव है तब तक जो PP2Cs हैं ये एक्टिवेटेड स्टेट में है, और जब तक PP2Cs एक्टिवेटेड स्टेट्स में है ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी के थ्रू जो SNRK2 प्रोटीन है उनको इनहिबिट करके रखते हैं। ये इनहिबिशन के लिए निशान दिया गया है। तो SNRK2 इनएक्टिव रहेगा कब तक? जब तक PP2Cs जो है वो एक्टिव है, यानी कि PP2Cs जो है वो एक तरह से इनहिबिटर का काम कर रहे हैं। अब हम समझेंगे कि SNRK2 जो कि अब इनएक्टिव है, अगर वो एक्टिव होता तो क्या हो जाता? अगर SNRK2 एक्टिवेट होता तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यानी ये न्यूक्लियस में जाता और वहां पर कुछ प्रोटीन्स को फॉर्म करता। वो प्रोटीन्स कहलाते रिस्पॉन्स फैक्टर्स, या कुछ दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को वो एक्टिवेट करता। वो सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोटीन्स बनाते हैं, इस तरह के प्रोटीन जो ABA का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनेंगे। तो ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करने का काम SNRK2 कर सकता था, और वो सभी प्रोटीन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ABA के, उन्हें हम रिस्पॉन्स फैक्टर कहते हैं। देखिए, केवल ABA के लिए नहीं, किसी भी हार्मोन के लिए उसके अपने रिस्पॉन्स फैक्टर हैं, यानी वो कैसे काम करेंगे। तो रिस्पॉन्स फैक्टर बेसिकली एक जीन होता है, उस जीन को डायरेक्ट हार्मोन आने पर एक्टिवेट कर सकता है, या किसी और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की मदद से वो सारे जो रिस्पॉन्स फैक्टर उनको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो बेसिकली ABA की एब्सेंस में, जब ABA नहीं है तो काम भी नहीं होंगे। तो देखिए क्यों नहीं हो रहे काम, कि रिसेप्टर जो है वो इनएक्टिव है। रिसेप्टर इनएक्टिवेट होने पर इनहिबिटर जो है PP2Cs, जो हमारे टाइप 2 प्रोटीन फॉस्फेटेजेस हैं, वो एक्टिवेटेड हैं। तो इनका काम ये होता है, जब ये एक्टिव होंगे PP2Cs, तो ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी के थ्रू SNRK2 जो बेचारा फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होता, उसका तो फॉस्फेटेज ने जो है ब्रेक डाउन कर दिया फॉस्फेट, तो SNRK2 इनएक्टिवेटेड है। और SNRK2 का काम है कि वो रिस्पॉन्स फैक्टर्स को एक्टिवेट करते जाकर, तो अब क्योंकि वो इनएक्टिव है तो वो कांट एक्टिवेट, वो आगे जाकर एक्टिवेट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स फैक्टर अगर किसी हार्मोन के एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे तो कोई रिस्पॉन्स भी शो नहीं करेगा वो हार्मोन, और ये बात सीधी सी है, जाहिर है कि ABA नहीं है तो फंक्शन भी नहीं होंगे। अब हम केस डिस्कस करते हैं कि जब ABA आ जाएगा तब ऐसा क्या इफेक्ट होंगे कि ABA के रिस्पॉन्स जो है वो शो होंगे। तो एब्सिसिक एसिड के आ जाने पर रिसेप्टर हो जाएंगे एक्टिव। अब रिसेप्टर वही है, PYR, PYL या RCR, जो भी रिसेप्टर लिया गया है वो अब एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने पर कई तरह के मैकेनिज्म यहाँ पर जो है शो किए जाते हैं कि एक्टिवेट होने पर, यानी ABA आने पर वो एक्टिव है, अपना लिगेंड आने पर रिसेप्टर एक्टिव है, तो वो PP2Cs को इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, जो PP2Cs थे ये जो हमारे फॉस्फेटेजेस एक्टिविटी परफॉर्म करके हमारे SNRK2 को इनएक्टिव रखे हुए थे। तो क्योंकि अब ABA आने पर रिसेप्टर ने PP2Cs को ही इनएक्टिव कर दिया, तो इनएक्टिवेटेड PP2Cs अपना काम नहीं कर सकता, और इसका काम क्या था? फॉस्फेटेज एक्टिविटी के थ्रू SNRK2 को इनएक्टिव रखना। तो अब ये SNRK2 को इनएक्टिव नहीं रख पाएगा, तो SNRK2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। SNRK2 एक्टिव होने का कारण ये है कि PP2Cs खुद इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो जो SNRK2 है वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, यहां मैंने मेंशन भी किया है, अब उनके साथ कोई फॉस्फेटेज एक्टिविटी नहीं है, तो वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू खुद एक्टिव हो गए। और मैंने यहां भी बताया था SNRK2 जो है ये एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जो आगे जाकर और रिस्पॉन्स फैक्टर या अदर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। तो ये बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, SNRK2 फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे SLAC1 या K81, ये रिस्पॉन्स जीन्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, या इन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह सकते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के बाद अपने रिस्पॉन्सिव प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, तो SLAC1, CAT1, ABI51, ABF, ये कुछ रिस्पॉन्स फैक्टर, आप चाहे तो इनके नाम मेंशन ना करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि SNRK2 जो है, क्योंकि वो एक्टिव है तो वो एब्सिसिक एसिड के रिस्पॉन्स फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करेंगे। आप चाहे तो सीधा ABF लिख सकते हैं, या आप कुछ रिस्पॉन्स फैक्टर के नाम मेंशन कर सकते हैं जैसा कि मैंने मेंशन किए हैं। अब इन पर भी आएंगे, उससे पहले मैं रिपीट करता हूं कि ABA की जो सिग्नलिंग है, ABA आने पर रिसेप्टर एक्टिव होते हैं, PP2Cs इनएक्टिव होते हैं। PP2Cs इनएक्टिव होने का एक कारण, क्योंकि हमने पढ़ा है यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे के थ्रू जो है ये भी ABA हार्मोन जो वो सिग्नलिंग करता है। आप पहले ऑक्सिन का सिग्नलिंग पढ़ें, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि कैसे यूबिक्विटिन सिग्नलिंग काम करती है। तो रिसेप्टर जो होता है ABA के आने पर रिक्रूट करता है दो प्रोटीन्स को, PUB12 और PUB13। PUB12 या PUB13 जो है ये यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम प्रोटीन्स हैं, यानी प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करेंगे दूसरे प्रोटीन्स का। खुद ऐसे प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन को तोड़ते हैं यूबिक्विटिनाइलेशन के थ्रू या प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन के थ्रू E3 लाइगेज की तरह बिहेव करके, तो ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करेंगे PP2Cs को।
देखिए ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म क्या है, इस पर हम जो है एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पर। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पब 12 या पब 13 है वो डिग्रेड करते हैं PP2Cs को, और PP2Cs अगर डिग्रेड होंगे तो इनएक्टिव रहेंगे। तो आप दोनों तरह का कंसेप्ट पढ़ सकते हैं कि रिसेप्टर इनएक्टिव रखता है PP2Cs को, या रिसेप्टर डिग्रेड कर देता है PP2Cs को। कैसे? रिसेप्टर रिक्रूट करता है पब 12 या पब 13 को। ये केवल तभी रिक्रूट हो सकते हैं जब ABA आएगा, अगर ABA नहीं है तो ये रिक्रूटेड नहीं है, और फिर PP2Cs एक्टिव रहेगा और SNRK2 इनएक्टिव रहेगा। जबकि ABA आ जाने पर PP2Cs खुद इनएक्टिव हो गया तो वो चाहकर भी, यानी वो फॉस्फेटेज एक्टिविटी ना परफॉर्म करके SNRK2 को एक्टिवेट कर देता है। SNRK2 आप लिख सकते हैं कि आगे रिस्पॉन्स फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और ABA के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होने लगते हैं। कुछ पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स हैं या रिस्पॉन्स फैक्टर, उनके मैंने नाम लिखे हैं, जैसे SLAC1 या जो CAT1 होता है। ये दोनों रिस्पॉन्स फैक्टर, इनका काम क्या है इन रिस्पॉन्स फैक्टर्स का, कि ये आयन चैनल्स को ब्लॉक करके स्टोमेटल क्लोजर में हेल्प करेंगे। आप प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कैसे एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर जो है कॉज करता है, या इसका भी सिग्नलिंग हम आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे, एक डिटेल मैकेनिज्म कि कैसे वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करके पोटेशियम चैनल को गार्ड सेल्स के अंदर ब्लॉक करता है। पोटेशियम गार्ड सेल्स में नहीं आएंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा और वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज नहीं होगा, और पानी आना बंद हो जाएगा सराउंडिंग सेल से, गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं रहेंगे और स्टोमेटा वापस क्लोज हो जाएंगे। तो ये एक डिटेल मैकेनिज्म, इसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो भी मैं जो श्योरली बनाऊंगा, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि स्टोमेटा को कैसे क्लोज करता है ABA, इसका एक फंक्शन भी है ये। तो राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर या कुछ रिस्पॉन्सिव जीन्स हैं। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ही जाकर जीन्स बनाते हैं, तो इनका काम है आयन चैनल्स को ब्लॉक रखना। ऐसा ही एक और एग्जांपल है रिस्पॉन्सिव जीन्स का, ABI5, द एब्सिसिक एसिड इनसेंसिटिव 5। यहां पर मैंने फुल फॉर्म लिखा भी है, एब्सिसिक एसिड इनसेंसिटिव। यहां पर पर्टिकुलरली मैं 5 की बात कर रहा हूं तो 5 वर्जन है। ये सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करता है। ये रिस्पॉन्सिव फैक्टर का काम क्या है? सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करना। ऐसे ही एक रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स है ABF2 या ABF3। तो ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर, तो ये भी रिस्पॉन्स फैक्टर है ABA हार्मोन के। तो इस तरह के 2, 3 इन सब का काम है। जैसे LEA को, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट, एक प्रोटीन होता है लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट, ये मैंने ABA के फंक्शंस में भी डिस्कस किया है। तो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट को एक्टिवेट करते हैं ABF। तो ये सारे देखिए कब एक्टिवेट हो रहे हैं, सारे रिस्पॉन्सिव जीन्स ABA के आने पर एक्टिवेट हो रहे हैं। कैसे कि ABA आते ही रिसेप्टर एक्टिव, PP2Cs या तो डिग्रेड हो गया या इनएक्टिव हो गया, उसके बाद SNRK2 को आजादी मिल गई, वो एक्टिवेट है। SNRK2 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आने वाले रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करता है। तो आप यहाँ पर जीन्स के नाम मेंशन ना करके ABI5 या SLAC या CAT1 या ABF, आप डायरेक्ट कॉमनली भी लिख सकते थे कि एब्सिसिक एसिड के रिस्पॉन्स फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है कौन? SNRK2। तो अलग अलग रिस्पॉन्स फैक्टर एक्टिवेट होते ही ABA के फंक्शन भी होने लगेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने बता भी दिए, जैसे मान लीजिए SNRK2 ने SLAC1 एक्टिवेट कर दिया तो फिर क्या होने लगेगा? स्टोमेटल क्लोजन होने लगेगा। तो ये फंक्शनिंग है या सिग्नलिंग है ABA की, कि ABA ना होने पर क्या होता है और ABA के प्रेजेंट होने पर क्या होता है। यहां पर मैंने ABI1 जो है ABA इनसेंसिटिव 1, ये एग्जाम्पल होता है PP2Cs का। देखिए PP2Cs भी एक कैटेगरी है पूरी, उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ABI1, ABA इंसेंसिटिव 1 या 2। ऐसे ही HAB। तो यहाँ पर हर चीज का मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल भी जो है मेंशन किया, तो बताया है ये उस चीज का एग्जांपल या कोई ग्रुपिंग है। तो रिसेप्टर आपको ये ले सकते हैं PYR, PYL। PUB12 13 डिग्रेडिंग प्रोटीन है जो PP2Cs को डिग्रेड करते हैं। PP2Cs के कुछ एग्जांपल जैसे ABI1 यानी कि एब्सिसिक एसिड इंसेंसिटिव 1। ध्यान रहे ABI1 जो है वो तो PP2Cs है, और जो ABI4, 5 है यहाँ पर जो नीचे मेंशन किए गए जैसे 5 जैसे कि 4, ये रिस्पॉन्स फैक्टर है। इथिलीन में भी कुछ ऐसी सिग्नलिंग, आप इथिलीन की सिग्नलिंग अगर देखेंगे तो वहां भी EIN कुछ रिसेप्टर हैं और कुछ EIN इथाइलिन इंसेंसिटिव जो है वो रिस्पॉन्स जीन है। तो कोई भी हार्मोन हो उसके रिस्पॉन्स फैक्टर्स या उसके रिस्पॉन्सिव जीन्स होते हैं। इसका मतलब है अगर रिस्पॉन्सिव जीन्स एक्टिवेट हो गए तो वो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो उस हार्मोन का फंक्शन करके देंगे। तो रिस्पॉन्स फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग तरह के सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, चाहे वो फॉस्फोराइलेशन यानी कि 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग से एक्टिवेट हो, चाहे वो यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन के थ्रू एक्टिवेट हो। जनरली ABA में, जिब्रेलिन में और ऑक्सिन में जो यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन है, इसका एक कॉमन पाथवे है कि यूबिक्विटिनाइलेशन के थ्रू इनहिबिटर को ही डिग्रेड किया जाता है। इनहिबिटर किसी रिस्पॉन्स फैक्टर के साथ अटैच रहता है, जब तक वो अटैच रहेगा रिस्पॉन्सिव फैक्टर अपना काम नहीं कर पाते। तो यूबिक्विटिनाइलेशन के थ्रू होता क्या है कि इनहिबिटर को ही डिग्रेड कर दिया जाता है। तो कॉमन पाथवे है ऑक्सिन का भी, सिमिलरली ABA का भी और जिब्रेलिन का भी, बस रिसेप्टर के नाम और रिस्पॉन्सिव फैक्टर्स के नाम जो है वो अलग अलग है। तो इसको आप अगेन
अगर कोई कंफ्यूजन है तो बैक करके और एक एक रिसेप्टर या एक एक जो प्रोटीन है उनके नाम के थ्रू आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी डाउट को. सो दैट इज ऑल फॉर द ABA signaling whenever the ABA is absent as well as whenever the ABA is present. So this is about the ABA signaling pathway. In several or the other videos, we will more discuss about the particular function, that is the stomatal closure, and how the calcium as well as these genes are involved in the stomatal closure. So that is all for today. Have a good time.